Hello students. So now let us start solving numerical problems on accounting standard 5. We have three problems over here. The first one, which I have taken it from Nirali publication textbook, and other two are from Thakur publication textbook. So let us solve without wasting time. Example 13. So the example 13 is based on changes in accounting policy and changes in accounting estimate. So let us read it. Bitco Limited, Bandra acquired a modern machine on 1st of April 2014 at cost of rupees 50,000. The estimated realizable value of machine is 10,000 at the end of its working life of 10 years. मतलब they are saying machine की life is 10 years. At the same time the cost is 50,000 and the realizable value, that is net realizable value, is 10,000 at the end of the life. Fine. So can you determine the depreciation from this, from the given information? Can you determine the depreciation? Yes, you can determine. The cost is 50,000, then realizable value is 10,000. So you know depreciation is equal to cost less than realizable value divided by the number of years, that is the life, estimated life. So in this case the depreciation per annum which would have been charged would be, let us calculate it over here. It would be 50,000 divided, sorry, minus the realizable value 10,000 divided by 10 years of life. So that comes to 40,000 divided by 10 is 4,000 depreciation. 4,000 would have been the depreciation, right? I hope you are getting it. Next, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट डिप्रिसिएशन ऑफ 4,000 पर एनम हैज बीन चार्ज अप टू 16-17. तो देखो उन्होंने ऑलरेडी डिप्रिसिएशन दिया है. वी हैड नो, देयर वाज नो यूज ऑफ कैलकुलेटिंग इट. तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट डिप्रिसिएशन ऑफ 4,000 हैज बीन चार्ज अप टू 16-17. द मशीनरी was purchased in 14, that is 14-15, then 15-16 and 16-17. After 3 years they are talking about, for 3 years 4,000 depreciation has already been charged. Then Bitco Limited has switched over to 10% per annum reducing balance method of depreciation. मतलब 3 साल बाद, after 16-17, मतलब 17-18 में Bitco Limited shifted to reducing balance method. So this is change in depreciation method. This is change in depreciation method. Earlier they charged on straight line 4,000 every year. Now they are shifting to 10% per annum reducing balance method, right? The new rate of depreciation is based on revised working life of 12 years. The new rate shall apply retrospective, with retrospective effect. I had told you there are two types of thing, that is prospective effect and retrospective. So here they are telling you कि we have to adopt retrospective with effect from retrospective method with effect from 1/4/2014. Fine. State how would you deal with above final accounts of the company for the year ended 31st March 18 के लिए आप कैसे डील करोगे? मतलब देखो क्या हुआ है, द मशीन वॉज एक्वायर्ड इन 14-15. सी आई विल गिव इट टू यू ओवर हियर. देखो 14-15 में एक्वायर किया था, दिस वॉज 14, दिस वॉज 15, देन 16, 15, 16 एंड देन 16 से लेके 17 तक एंड नाउ यू आर करंटली इन 17-18. So after 3 years, first year, second year and third year, they have already charged a depreciation of 4,000, that is in total 12,000, right? And now in 17-18 they are telling you कि now you have to change the depreciation rate, depreciation method at 10% reducing balance method. You have to now charge depreciation at the rate of 10% on reducing balance method, and that too this change is with retrospective effect. They are saying retrospective मतलब they वो बोल रहे हैं कि like you have to change it starting from 14-15, कि लाइक जब मशीनरी खरीदी की 14-15 में, उसी टाइम से हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया रहता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती. दिस इज व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ये हमने क्लास में देखा था, राइट? सो ऑन सिमिलर लाइंस हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा इफेक्ट. देखो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, एटलीस्ट क्वेश्चन समझा है. तो अभी देखते देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी करंट में मशीन का कॉस्ट क्या होगा, दैट इज WDV क्या होगा. देखो 50,000 को एक्वायर किया था मशीनरी. यस 50,000 को एक्वायर किया था मशीनरी. यस देन हमने 3 साल डेप्रीसिएशन किया, दैट इज 14-15, 15-16
एंड 16-17, 3 साल 4,000 4,000 4,000, टोटल 12,000 रुपीज़ हमने डिप्रिसिएट किया। तो आज जाके मशीनरी का वैल्यू 38,000 होगा। आई होप इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आज जाके मशीनरी का वैल्यू 38,000 होगा, राइट। नाउ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या रहता है कि आज वाला जो मेथड है या फिर आज वाला जो एस्टीमेट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स अप्लाई कर दे आने का। इन दैट केस क्या वैल्यू होगा, मतलब दैट मीन्स दे आर सेइंग ये 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो अभी करंट वाला न्यू मेथड है ना, ये अगर हम पहले से लगाते राइट फ्रॉम 14-15 उस टाइम से लगाते तो अपना वैल्यू क्या आता मशीनरी का। तो लेट अस क्या कंप्यूट दैट, वो कंप्यूट करते हैं। देखो 50,000 was the cost, 50,000 was the cost of machinery। देन पहले साल के लिए दैट इज 14-15 के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 पे डिप्रीसिएशन करेंगे। 50,000 पे, एक ही मिनट, ये देखो हम 14-15 के लिए क्या करेंगे, हम 50,000 पे डिप्रीसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10%। दैट इज ये डिप्रीसिएशन आ जाएगा 5,000 रुपीज़, राइट। देन 5,000 होने के बाद उसका बैलेंस कितना बचेगा मशीनरी का, 50,000 की मशीनरी थी, 5,000 डिप्रीसिएशन हुआ तो बैलेंस बचा 45,000, राइट। तो अभी बाद में क्या करेंगे, 45,000 सेकेंड ईयर के लिए 45,000 पे 10% लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है देखो इज इक्वल टू 4,500 अपना डिप्रीसिएशन आ जाएगा। तो इसमें से 4,500 माइनस किया तो कितना बचता है, ये बचेगा 4,0500। थर्ड ईयर के लिए ये बन जाएगा ओपनिंग WDV, राइट। आई होप आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पता है कैसे अप्लाई होता है। तो ये बच जाएगा आपका 40,500 थर्ड ईयर के ओपनिंग पे। तो 40,500 पे थर्ड ईयर में डिप्रीसिएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, ये रहा यहाँ पे 40,500 इंटू 10% बिकम्स 4,050। तो तीसरे साल के लिए डिप्रिसिएशन 4,050। तो फर्स्ट ईयर 5,000 डिप्रिसिएट किया। देखो पहले केस में कैसे किया था, इट वॉज 4,000 4,000 4,000 एवरी ईयर। बट अगर ये नया मेथड लगाया तो 5,000 4,500 एंड 4,050 ये डिप्रिसिएशन आता है। तो अगर ये टोटल, अगर मैं ये मेथड यूज़ करता तो मेरा टोटल डिप्रिसिएशन 3 सालों में इतना आता, कितना, 13,550। और ये अगर आता तो मेरा मशीनरी का वैल्यू इतना बचता, दैट इज 36,450, राइट। पर एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो एक्चुअल है वो किया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या किया, जो अगर होता ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर देते तो क्या आता, तो ये निकाला। तो एक्चुअल मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे 38,000 है, बट आइडली कितना होना चाहिए, 36,450 होना चाहिए था। अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते तो 36,450 होना चाहिए था। मतलब कितना एक्सेस है मशीनरी का वैल्यू। देखो अब भी करंट में बुक्स में दिख रहा है 38,000, बट आइडली होना चाहिए अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड निकालते तो 36,450। तो एक्सेस कितना वैल्यू दिख रहा है, इस एक्सेस वैल्यू दिख रहा है 38,000 माइनस 36,450। यहाँ पे जो किया है देखो एक्सेस डिप्रीसिएशन, एक्सेस वैल्यू जो दिख रहा है अभी 38,000 माइनस 36,450, दैट कम्स टू 1550। आई होप आपको समझ रहा है, तो 1550 से एक्सेस मेरी मशीनरी दिख रही है तो मुझे उसने कम करनी पड़ेगी ना, सो एज टू ब्रिंग इट टू द न्यू वैल्यू, बाय अडॉप्टिंग न्यू मेथड रिट्रोस्पेक्टिवली। कौन सी वैल्यू आ रही है 36,450, तो मशीनरी उतनी कम करने के लिए मुझे 1550 का एडिशनल डिप्रीसिएशन करना पड़ेगा इन फोर्थ ईयर। दैट इज थर्ड ईयर तो ऑलरेडी 3 साल खत्म हो चुके हैं ना, तो उसके बाद फोर्थ ईयर में मुझे उतना डिप्रीसिएशन एडिशनल करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ रहा है। एंड फोर्थ ईयर का खुद का भी तो डिप्रीसिएशन होगा, लाइक 3 साल के लिए 4,000 हज़ार किया था, 4,000। फिफ्थ ईयर में कुछ तो एक्सेस किया ये वाला 1550, एंड ये तो एक्सेस वाला हुआ। बट एक्चुअली जो नॉर्मली फोर्थ ईयर में डिप्रीसिएशन रहता वो भी तो रहेगा। तो वो कौन से मेथड पे रहेगा, वो अभी नए मेथड पे रहेगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या बन रही अभी नई वाली 36,450 बनी आज के दिन। तो 36,450 इंटू 10%, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% पे, तो ये आ जाता है 3645। तो ये डिप्रिसिएशन तो सर रहेगा, जो हर साल का मिलता है वो तो रहेगा, प्लस इस साल एक्सेस डिप्रिसिएशन भी होगा। तो 3645 प्लस 1550, दैट इज ये एक्सेस डिप्रिसिएशन 1550, टोटल मिला के फोर्थ ईयर में 5195 वुड बी योर डिप्रिसिएशन,
दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू कि आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दे के, रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करके आपने मशीनरी का वैल्यू चेंज किया एंड नया वाला डिप्रिसिएशन निकाल लिया. फाइन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है. सिमिलरली ये निराली वाला क्वेश्चन है, इमीडिएटली यहाँ पे शिफ्ट होते हैं. एग्जाम्पल वन, देयर वॉज अ थेफ्ट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 2018-19 अमाउंटिंग टू 25 lakhs. मतलब 18-19 में चोरी हुआ था, राइट, अमाउंटिंग टू 25 lakhs. द सेम वॉज डिटेक्टेड इन करंट ईयर 1920, मतलब एक साल बाद में, मतलब लाइक पहले चोरी हुआ एंड देन बाद में 1920 में समझा एट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी. जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तब समझा. हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस थेफ्ट इन डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920. मतलब 1920 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं इसको कैसे डिस्क्लोज करूँ, कैसे ट्रीट करूँ, वो बताया जाए. तो कैन यू टेल मी दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इट इज़ थेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. देखो हमने देखा था AS5 classifies items into different categories like extraordinary items, ordinary activities, extraordinary items, then prior period items, right. तो ये थेफ्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी की हमने डेफिनेशन क्या दिखी थी कि दीज आर इवेंट्स या फिर ट्रांजेक्शन विच आर नॉट ऑर्डिनरी या फिर विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी. तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज से ये कंप्लीटली डिफरेंट है थेफ्ट. एट द सेम टाइम उस डेफिनेशन में ये भी पार्ट था कि लाइक इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर रेगुलरली, बार बार फ्रीक्वेंटली होने जैसे नहीं है. तो थेफ्ट को फ्रीक्वेंटली होता है क्या? नो, नहीं. सो इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी. यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. तो अगर थेरी आंसर लिखना है, थेरी क्वेश्चन आया तो इट वुड बी, आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे कि थेफ्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. क्यों? तो उसकी डेफिनेशन दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का और बताओ कि थेफ्ट इज नॉट रेगुलर इन नेचर एंड इट इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज, ये बताओ. एंड देन राइट कि इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. एट द सेम टाइम ये नेक्स्ट ईयर पता चला तो इट ऑल्सो बिकम्स अ प्रायर पीरियड आइटम बिकॉज दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यू एक्सपेंस. इस साल कुछ नया एक्सपेंस समझ में आया, एक्सपेंस या फिर लॉस बोल लो, इस साल कुछ लॉस नया समझ में आ जाएगा बिकॉज ऑफ थेफ्ट 1920 में. बट हमने देखा था द एक्सपेंस लॉस आइटम्स ऑफ करंट ईयर which are a result of past years, that is mistakes और omissions of past years. मतलब जो आइटम्स इस साल फाइंड हुए हैं हमें एंड जो इस साल के एक्सपेंस है बेसिकली या फिर रेवेन्यूज है, बट विच आर अराइजिंग आउट ऑफ मिस्टेक्स, एरर्स, ओमिशन ऑफ पास्ट वन और मोर पास्ट पीरियड्स, उनको हम प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं. तो इन दिस केस ये वही हो रहा है कि 1920 में हमें लॉस जाके आइडेंटिफाई हो रहा है एंड वो लॉस पर्टेनिंग टू 1819 है जो उस टाइम चोरी हुई थी बट उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हुई थी. तो दिस वॉज अ मिस्टेक या फिर एन ओमिशन ऑफ 1819 विच इज आइडेंटिफाइड इन 1920. देयरफॉर इट इज़ अ प्रायर पीरियड आइटम. तो ये भी बताने का प्रायर पीरियड आइटम. एंड देन AS5 क्या बोलता है? प्रायर पीरियड आइटम डिस्क्लोज करना है इन अ मैनर दैट इट्स इम्पैक्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, कि अलग से उसका इम्पैक्ट दिखे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने का AS5 बताता है. दैट्स इट. यू हैव टू राइट दिस ऑल दिस इन दिस थ्योरी. एक बार पढ़ लो ये. फाइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल. बिफोर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसमें राइट प्रिंटिंग एरर है. तो सिर्फ ये वाला 84,000 होगा आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसको 8,400 कर दो सब जगह जहाँ पे क्वेश्चन में है. दो जगह यहाँ पे भी है 84,000, तो वो 8,400 कर दो. लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन. सी एग्जाम्पल टू. In September 2019, ABC Limited found that goods amounting to 8,400 which were included in inventory में include थे as on 31st March 19. अच्छा, September 19 में ये इनको समझा. September 19 मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में इनको समझा कि कुछ तो 31st March 19 मतलब 1819 के लिए जो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड थे वेर एक्चुअली सोल्ड बिफोर 31st March 19. मतलब 31st March 19 के पहले, साल खत्म होने के पहले ही गुड्स बेच दिए थे बट स्टिल दे वर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. ऐसा कभी होता है क्या कि अगर गुड्स तुम लोगों ने बेचे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे इंक्लूड होंगे वो, पर फिर भी इन्होंने किया था. डोंट यू थिंक दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम? दिस इज अ मिस्टेक ऑफ पास्ट, राइट. तो वही है कि विच वेर सोल्ड बट स्टिल वेर
इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, देन कैन यू से लाइक दिस, इसमें से आप कंक्लूड क्या ये नहीं कर सकते कि 18-19 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ रहेगा, राइट, ओवर वैल्यूड होगा, ऐसा लिखता हूँ मैं, ओवर वैल्यूड होगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 19-20 में 19-20 का ओपनिंग स्टॉक वुड बी ओवर वैल्यूड, राइट, ओपनिंग स्टॉक वुड बी ओवर वैल्यूड। तो इजंट इट अ मिस्टेक, तो हमें ये कम करना होगा, मतलब लाइक कम करना होगा इन द सेंस ये मिस्टेक एलिमिनेट या फिर रेक्टिफाई करना होगा। फाइन, द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिपोर्टेड फॉर 18-19 एंड 19-20 ड्राफ्ट अवेलेबल। नीचे मतलब लाइक P&L स्टेटमेंट दिया है, देखो सेल्स COGS, मतलब लाइक सेल्स माइनस COGS किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, माइनस टैक्सेस किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फाइन, दोनों साल का दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या करना है अभी। देन retained earnings as on 1st April 2018, that is 18-19 का ओपनिंग retained earnings दिए हैं। फाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 19-20 इंक्लूड्स, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 19-20 इंक्लूड्स 8,400 एरर्स इन ओपनिंग इन्वेंटरी। ऑब्वियसली अगर 18-19 के क्लोजिंग में डिफरेंस है तो ओपनिंग में 19-20 के भी डिफरेंस है, तो उन्होंने वो दिया है, स्पेसिफिकली दिया है। फाइन, हमने भी यही इंटरप्रेट किया था। आगे बढ़ते हैं। द इनकम टैक्स वॉज 30% फॉर 18-19 एंड 19-20, दोनों साल के लिए इनकम टैक्स वॉज 30%। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स इज 30%, 25,660 एंड 7,760। अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो इट वुड कम टू 30%। गिव मी अ सेकंड। फाइन, देखो कैलकुलेट करता हूँ मैं, 7,760 डिवाइडेड बाय 25,660, इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 30%। सिमिलरली 19-20 का भी 30% आ जाएगा। फाइन, ये जस्ट क्रॉस चेक था। फाइन, दिस इज जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। देन आगे, शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 19-20 विद 18-19 कंपेरेटिव्स, मतलब 18-19 और 19-20 के तुम्हें फाइनेंशियल्स देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L देना है एंड रिटेन्ड अर्निंग्स भी देने हैं। ऑब्वियसली करेक्ट करके, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप करेक्ट करके दो, जो मिस्टेक्स हुए हैं 18-19 19-20 में उसको रेक्टिफाई करो एंड देन यू डू इट। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक में देयर इज ओनली वन एरर, क्लोजिंग स्टॉक में है वो, मतलब जो एरर है वो क्लोजिंग स्टॉक में है। क्या है एरर? द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18-19 इज ओवर वैल्यूड, अब भी ज़्यादा वैल्यू पे दिख रहा है, राइट, क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी एक साल की बात करेंगे, पहले 18-19 देन 19-20। अभी देखो इस सम को सॉल्व कैसे करना है। 18-19 में फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे इंक्लूड होता है? P&L स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो इस P&L स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे इंक्लूड होता है? टैक्सेस में इंक्लूड होता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नो। सेल्स में इंक्लूड होता है क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको पता होगा, मैंने क्लास में भी बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर minus the closing inventory, राइट। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो जब यहाँ पे, तो देखो अभी जब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड किया है उन्होंने, मतलब ये माइनस किया है, तब ये फॉर्मूला से उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला होगा। उन्होंने क्या किया होगा? ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड की होगी, देन उसमें परचेसेस जोड़ दिए होंगे एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस की होगी 18-19 में, राइट। 18-19 की खुद की जो ओपनिंग इन्वेंटरी वो ऐड की, परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर जो 18-19 में खरीदा माल वो भी ऐड किया एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस की, राइट। आई होप आपको समझ रहा है। तो इन वाइल डिडक्टिंग द क्लोजिंग इन्वेंटरी, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस किया ना, तो ये माइनस करते टाइम डोंट यू थिंक उन्होंने ज़्यादा 8,400 ज़्यादा माइनस किया होगा? 8,400 ज़्यादा माइनस किया होगा। डोंट यू थिंक दिस कि 8,400 ज़्यादा माइनस किया है? बिकॉज 18-19 की क्लोजिंग इन्वेंटरी, मतलब जो माल सेल हुआ है वो भी उन्होंने स्टॉक में इंक्लूड किया था, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में वो दिख रहा होगा ना।
तो उन्होंने जब माइनस किया होगा ये अमाउंट तो ज़्यादा माइनस की होगी, राइट। तो कैन आई से COGS, ये जो COGS ये आया है, ये COGS आया है वो ज़्यादा माइनस करने के बाद आया है, मतलब 69,140 ये जो आया है वो ज़्यादा माइनस करने के बाद आया है। दैट मीन्स ये फिगर कम आया है, दैट मीन्स 69,140 कम आना है, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा सो एज टू कॉम्प्यूट COGS एक्यूरेटली। समझिए एक बात समझिए कि वी हैव टू इंक्रीज COGS। क्यों? तो उसमें COGS जब निकाला, ये वाला गलत वाला जो निकाला ना, उस टाइम उसमें ज़्यादा माइनस किया था हमने 8,400, बिकॉज हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी ज़्यादा पे वैल्यू किया था, राइट। तो हमें 69,140 ये इंक्रीज करना है सो दैट करेक्ट COGS निकले। तो हम यहाँ पे करेक्टेड COGS निकालते हैं। देखो वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड COGS दिया हुआ है 69,140, उसमें हमने इन्वेंटरी एडजस्टमेंट कर दिया, जो गलत वैल्यू पे माइनस किया था उसको ऐड कर दिया अभी 8,400, तो हमारा COGS आया 77,540। फाइन, ये COGS आया हमारा। COGS आया तो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ PNL बनाते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ PNL, सेल्स 94,800 वही रखें जो आई होप आपके सामने अगर क्वेश्चन है तो देखो सेल जो क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर दिए थे हमने वही रखे 94,800। देन COGS हमने रेक्टिफाई वाला लिया, नया वाला लिया, आई एम सॉरी, ये सॉल्यूशन ही है ना। 94,800 हमने सेल्स रखे, देन COGS नया वाला लिया 77,540। COGS लेस करेंगे अगर सेल्स से 94,800 माइनस 77,540, तो नया वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा 17,260। देन इनकम टैक्स कॉम्प्यूट करेंगे। अभी देखो पहले इनकम टैक्स क्वेश्चन में कितना दिया था, क्वेश्चन में देखो, ये देखो इट इज 7760, यहाँ पे 7760 है इनकम टैक्स, राइट। अभी उसमें इन्वेंटरी एडजस्ट हुआ ना, अभी देखो ना प्रॉफिट बढ़ गया ना तो टैक्स भी बढ़ेगा, राइट, तो 7760 एंड अभी प्रॉफिट कितना हुआ अपना 17,260। पहले प्रॉफिट कितना था, इट वॉज 25,000, मतलब प्रॉफिट कम हो गया। आई गेस मैंने प्रॉफिट बढ़ गया बोला, आई एम सॉरी, प्रॉफिट कम हो गया। देखो पहले इट वॉज 25,660, अभी प्रॉफिट हो गया कितना 17,260, मतलब प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हुआ है, क्यों प्रॉफिट कम हुआ, COGS अपना बढ़ गया ना, 8,400 हमने ऐड कर दिया COGS में, तो कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। एंड प्रॉफिट कम होने से डोंट यू थिंक टैक्सेस भी कम होंगे, तो टैक्सेस अभी कितने कम होंगे, 8,400 से प्रॉफिट अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली टैक्सेस भी उतने से कम होंगे, 8,400 इंटू 30%, उतने पे टैक्स अपना बचेगा। तो पहले था 7760, ये देखो 7760 पहले था टैक्स, अभी कितना कम होगा, 8,400 इंटू 30% टैक्स रेट बोला है तो 2520 कम होगा, तो नेट टैक्स अभी कितना आ जाएगा 5240। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 5240। आई होप आपको समझ रहा है, 5240। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 17,260 माइनस 5240, दैट कम्स टू 12,020। आई होप आपको समझ रहा है, फाइन। तो अभी नेक्स्ट साल का करेंगे, देखो 1920, तो अभी टेल मी 1920 में क्या हुआ रहेगा, 1920 में क्या हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी 1819 की क्लोजिंग गलत थी, राइट, तो 1920 की ओपनिंग गलत होगी, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कहाँ पे इंक्लूड होगी, अगेन 1819 जैसे ही COGS में इंक्लूडेड होगी, राइट। देखो ना COGS का फॉर्मूला देखो ना, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस दी परचेसेस माइनस दी क्लोजिंग। सो 1920 में जो ओपनिंग होगी ये वाली, यही तो गलत है, ये 8,400 से ज़्यादा है, ये 8,400 से ज़्यादा दिख रही है। तो डोंट यू थिंक जब हमने ये COGS निकाला होगा, कितना निकाला है 1920 के लिए 111,600, तो इसमें जब ये निकाला होगा तब इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी गलत ऐड की होगी, 8,400 ज़्यादा अमाउंट की इन्वेंटरी ऐड की होगी हमने, तो डोंट यू थिंक ये COGS ज़्यादा है,
ये COGS जो आया है वो ज़्यादा है बिकॉज ओपनिंग इन्वेंटरी उसमें ज़्यादा वैल्यू पे की थी, तो ये COGS ज़्यादा है तो हमको उसको कम करना है, हमें उसको कम करना है। देखो तो यहाँ पे हम COGS जब निकालेंगे तो ये देखो फर्स्ट वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ COGS में 18-19 का हमने किया था। यहाँ पे ये आया COGS जो ऑलरेडी गिवन है 111,600 वो ज़्यादा है, इसलिए 8,400 उसमें से माइनस करके 103,200 बिकम्स आर न्यू COGS। एट द सेम टाइम आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार यहाँ पे देखा ना हमने, ये ऐड किया तो ये लेस करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग था तो यहाँ पे ओपनिंग है, ऐसे भी रख सकते हो याद। फाइन, तो ये ऐड किया था, ये लेस करेंगे, ये लेस कर रहे हैं, लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया क्यों लेस कर रहे हैं। 103,200 ये बना मेरा न्यू COGS। तो फिर से मैं P&L स्टेटमेंट बनाऊंगा। सेल्स रहेंगे मेरे सेम 134,400 जो क्वेश्चन में दिए हैं, देन 103,200 बिकम्स माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अभी मैंने निकाला वर्किंग नोट 1 में, देन सेल्स माइनस COGS बिकम्स माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31,200 आया ये। अगर मैं 134,400 में से 103,200 माइनस करूँ तो इट कम्स टू 31,200। अभी टैक्स कैसे निकालूंगा, फिर से टैक्स निकालूंगा। पहले टैक्स कितना था देखो मेरा, पहले मेरा टैक्स था 1920 के लिए 6,800 ये देखो यहाँ पे इनकम टैक्स। प्रॉफिट था 22,800 तो अभी प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट बढ़ गया 22,800 से बन गया 31,200। प्रॉफिट बढ़ गया मतलब टैक्स भी बढ़ेगा, तो पहले टैक्स था अभी देखा 6,800, उसमें ऐड होगा कितना टैक्स 8,400 पे। 6,800 वॉज माई अर्लियर टैक्स, उसमें 8,400 पे 30% ऐड होगा। सो 8,400 इंटू 30% करूँ तो 2,520 आता है। देखो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे टैक्स कम हो गया, यहाँ पे टैक्स बढ़ गया। समझ में आ रही है बात? So that comes to 9320. So this becomes my new tax. 9320. और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रॉफिट हटा दूँ तो दैट कम्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21,880। फाइन, समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन उतना ही नहीं था, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने बोला था, एट द सेम टाइम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी बनाने बोला है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में बताया था द रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वे 26,000 के रिटेन्ड अर्निंग्स थे ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब 18-19 के ओपनिंग में। सो देखो यहाँ पे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितने हैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितने हैं 26,000, राइट। देन अभी उस रिटेन्ड अर्निंग्स में इस साल का दैट इज 18-19 में जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड होगा, राइट। तो 18-19 में एक्चुअल आइडियली प्रॉफिट कितना हुआ, 12,020 प्रॉफिट हुआ, 12,020 प्रॉफिट हुआ। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 38,020। ये बन जाएगा ओपनिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ये देखो वो अलग मतलब लाइक डिस्क्लोजर है ये सिर्फ कि 43,900 हमने पहले निकाला था इन द सेंस कैसे, ये देखो गलत वाला प्रॉफिट ले लो, 26,000 ये ओपनिंग बैलेंस है, 26,000 ओपनिंग बैलेंस है, उसमें गलत वाला प्रॉफिट जो लास्ट टाइम क्वेश्चन में दिया होगा, देखो लास्ट ईयर का 18-19 का गलत वाला प्रॉफिट क्या है 17,900, वो जोड़ दो तो कितना आ रहा है 26,000 प्लस 17,900 किया तो आ रहा है मेरा 43,900। दैट इज गलत वाले रिटेन्ड अर्निंग्स ये थे, उसमें से मैंने करेक्शन हटा दिया, जो लास्ट टाइम करेक्शन किया वो हटा दिया, तो 38,020 आया। ये तो मेरा यहाँ पे भी आया ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ले सकते हो, समझा। देन उसमें हमने करेक्टेड प्रॉफिट जोड़ दिया, तो आएगा 59,900, दैट इज ये करेक्टेड प्रॉफिट यहाँ से आया 1920 का, तो ये बन जाएगा आपके रिटेन्ड अर्निंग्स। आई होप आपको समझा है, फाइन।